हेलो गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बट फ़िलहाल कोरोना चल रहा है तो बच के ही रहिएगा। तो आज मैं रोनित यादव आपके साथ आपको पढ़ाऊँगा आज फोटोसिंथेसिस। तो शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis, a process by which green plants make their own food with the help of by using CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll. And in other words, a process by which green plants convert their solar energy into chemical energy. So, photosynthesis के process में plants अपना food बनाते हैं by using carbon dioxide, water and in the presence of sunlight and chlorophyll. And in this process they convert solar energy into chemical energy. And the reaction of photosynthesis is 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. And the site of photosynthesis in leaves, there is mesophyll cells have two types, plastidial tissue and spongy tissue. In mesophyll cells there present chloroplast, and chloroplast is the main pigment or photosynthetic pigment, main site of photosynthesis. And raw material for photosynthesis is CO2, H2O and sunlight and chlorophyll. And in this reaction, the CO2 and water is inorganic material and C6H12O6 is glucose, and this is the main product. And in this reaction byproduct is O2. And the CO2, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन है वो जाती है ग्लूकोज के पास, और जो वाटर के पास जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाती है। अब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आती है? वो आती है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से क्लोरोप्लास्ट में कैसे आती है? थ्रू स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज स्मॉल टीनी पोर्स प्रेजेंट इन लीफ सरफेस। ये हम बाद में पढ़ेंगे। एंड इन जो ये टीनी पोर्स होते हैं तो इनके अंदर क्या कैसे आती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ molecule substance ions etc from their higher concentration region to lower concentration region. And water soil to root, root to stem, stem to leaves by xylem tissue, water conducting tissue. And the food formation in plants by in the form of glucose, and the glucose is monosaccharide and stored in leaves called food factory of plants. In leaves there is mesophyll cells. In mesophyll cells there is chloroplast called kitchen of cell. And the glucose transported food by sucrose, मतलब जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज के द्वारा होता है, और जो सुक्रोज है वो डाइसेकेराइड है। क्यों डाइसेकेराइड है? क्योंकि सुक्रोज के अंदर दो ग्लूकोज मिलते हैं तब वन मोलिक्यूल ऑफ सुक्रोज बनता है। और जो स्टोरेज ऑफ फूड है इन प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि फूड के इस प्लांट्स के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये बात याद रखना, स्टार्च। एंड इट इज़ पॉलीसेकेराइड। इन फोटोसिंथेसिस देयर इज क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन प्लास्टिड। ग्रीन मतलब ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। एंड प्लास्टिड हैव थ्री टाइप्स, leucoplast, chloroplast and chromoplast. And plastid are cell organelle present in only plant cell. And leucoplast colorless होता है, they help in storage of food. And chloroplast is green colored, used in photosynthesis. And chromoplast is colored plastid, provide color to flower and fruits. जो chromoplast है वो फ्रूट्स और फ्लावर को वो देता है कलर, एंड जो ये है क्लोरोप्लास्ट वो आता है ये फोटोसिंथेसिस के काम में। जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है वो ओवल शेप्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। जो डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो बीच का स्पेस होता है उसे पेसिप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। एंड इट हैज़ ऑल्सो हैव रिजर्व फूड, नेक डीएनए, circular DNA, also have ribosomes 70 styles, and their one CD-like structure called thylakoid, and many group of thylakoid called grana. There is light phase occurs and
इन ब्लैंक स्पेस देर इज स्ट्रोमा, देर इज डार्क फेज, मतलब डार्क रिएक्शन अकर्स एंड टू ग्रेनास कनेक्टेड बाई स्ट्रोमा लेमिला. So in thylakoid lumen contain chlorophyll and 230 chlorophyll present in one thylakoid. Important है ये, 230 chlorophyll present in one thylakoid. Photosynthesis have two reactions, light reaction, dark reaction. और आप इसे लाइट फेज और डार्क फेज भी बोल सकते हो. फोटोसिंथेसिस लाइट एंड डार्क. लाइट फेज है वो लाइट डिपेंडेंट फेज है, इन डे में होती है. और ये फोटोकेमिकल फेज है इन ग्रेना में, ये लाइट फेज. एंड डार्क फेज लाइट इंडिपेंडेंट फेज इन डे और नाइट. इट इज़ बायोकेमिकल फेज एंड इन स्ट्रोमा. डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में. एंड इन डे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, रेस्पिरेशन कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम रिलीज होती है, तो मतलब हाई रेट होती है फोटोसिंथेसिस की. एंड इन नाइट द फोटोसिंथेसिस इज कम, then respiration is high, then CO2 release high. Okay, and in the dark reaction depends on light reaction. Energy source is ATP and NADPH in dark reaction, and ATP and NADPH in formed in light reaction, and it is also called assimilatory power of dark reaction. and जो डार्क रिएक्शन की साइट है वो स्ट्रोमा होती है. एंड डार्क रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग ऑफ CO2 होती है. ओके, एंड ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP की एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, NADP की निकोटेनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एंड NADPH की रिड्यूस निकोटेनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. इन डार्क रिएक्शन एनर्जी सोर्स इज सनलाइट. डार्क लाइट रिएक्शन में एनर्जी सोर्स सनलाइट होती है और साइट ग्रेना होती है. और लाइट फेज है 4 टाइप्स, इसके 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. तो क्लोरोफिल ट्रैपिंग करता है सनलाइट को एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, ये फर्स्ट स्टेप में हो जाता है. एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसके अंदर वाटर का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वाटर है जो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर. एंड जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर फॉर्मेशन होती है ATP की थ्रू ADP बाई एडिंग PI. PI क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और ये सनलाइट के प्रेजेंस में ऐड होता है ADP में, तो ये बनता है ATP. एंड फोर्थ स्टेप इज कन्वर्जिंग ऑफ NADP इंटू NADPH. जो आपने देखा था ब्रेक डाउन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था पीछे, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो गई थी, बट बचा था हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन आती है NADP के पास एंड NADP में ऐड होती है तो वो NADPH हो जाता है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज O2, ATP एंड NADPH. O2 तो इवॉल्व हो ही जाता है एंड ATP एंड NADPH इज एंटर इनटू डार्क रिएक्शन. नाउ वी टॉक अबाउट क्लोरोफिल. Chlorophyll is a green colored photosynthetic pigment and organic molecule. It contain carbon in their structure. Important है organic molecule. It contain carbon in their structure and it has magnesium metal to their center. It's also important. It is magnesium metal to their center. Chlorophyll 7 types. Chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E and bacteriochlorophyll and bacterioverdin. तो ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोवर्डिन तो प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरियाज में. एंड क्लोरोफिल ए इज मैक्सिमम अवेलेबल. देन वी टॉक अबाउट, ये आपका नहीं है, डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल, स्टडीड बाई मेलविन एंड कैल्विन. और ये इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1962 में. एंड लाइट डिपेंडेंट फेज है ये, आपने देख लिया, इंडिपेंडेंट सॉरी. एंड बायोकेमिकल फेज साइट इज स्ट्रोमा सॉरी. एंड डार्क रिएक्शन के अंदर एनर्जी सोर्स होता है ATP एंड NADPH फॉर्म ड्यूरिंग लाइट फेज इन ग्रेना. ये दोनों ऐसे सिमिलर पावर है, आपको बता दिया. और ये जो प्रोसेस है उसके अंदर होता है रिड्यूसन ऑफ CO2 एंड फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ये बात याद रखना. इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो होता है रूबिस्को. इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस. एंड इसकी जो रिएक्शन होती है डार्क फेज की वो होती है CO2 प्लस रूबिस्को प्लस ATP प्लस NADPH गिव्स
C6H12O6 प्लस रूबिस्को प्लस ADP प्लस NADP है, NADP सॉरी, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी कुछ नोट लिख लीजिए आप। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज अवेलेबल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एल्गी में होता है, एंड जो रेट होती है फोटोसिंथेसिस की वो वाइट लाइट में होती है, फिर ब्लू और रेड में होती है, और सबसे कम ग्रीन में होती है फोटोसिंथेसिस की रेट। एंड जो वेवलेंथ होती है लाइट की, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर वो 400 to 700 nm होती है। nm क्या है? नैनोमीटर। एंड मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोफिल। अदर पिगमेंट है, ये आपका काम का नहीं है फिलहाल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। 6CO2 + 12H2O इज द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक इज क्लोरोफिल। एंड कैटलिस्ट फॉर डार्क रिएक्शन इज रूबिस्को। ओके, व्हाट इज द मीन बाय कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो होती है जिसके अंदर कोई भी चीज़ उस रिएक्शन को इजी पाथवे से लेके जाए। जैसे कोई काम है तो वो इजी साइड, इजी डायरेक्शन से हो रहा हो, उसे बोलते हैं। सो थैंक यू गाइज, मैं आपके साथ हूँ, आप पढ़ो। तब तक के लिए पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और हाई स्कोर करना है। थैंक यू गाइज, बाय।